Now, up in this video, here we'll study the preparation of colloidal sole. Before this preparation of colloidal sole, before we discuss the formation of micelles, that is cleansing action. What do you mean by cleansing action of soap? Soap containing both lyophilic and lyophobic part. So this lyophobic or hydrophobic part associated with it. See here it is drawn. And when it is, the soap is applicable to the cloth containing oil, spot or dust, it react with, see here, this lyophobic, here this is soap containing lyophobic, so lyophobic part of soap attached with the dust or oil spot, so it react with, see this part is lyophilic part is away, and here this is lyophobic part is associated with this dust, and dust or oil spot can be removed. In this way, this is the cleansing action of soap. Clear? Now after this we will study the preparation of colloidal sole, that is by chemical method, means how colloidal sole is prepared chemically. So first we will study the preparation of sulfur sole, that is S8. So here sulfur dioxide react with H2S. sulfur dioxide को अगर H2S से react किया जाए तो होगा क्या, देयर इज अ ऑक्सीडेशन, वहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, और उस ऑक्सीडेशन से देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, इस H2S का ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा H2O, और ये सल्फर सोल दैट इज S8 बन जाता है. क्लियर? और ये H2O फॉर्मेशन. सो इन दिस वे सल्फर सोल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड, and gold sole is also prepared from the gold chloride, AuCl3 react with formaldehyde and water. So what happened, one reaction takes place, this reaction takes place, that is it is said to be reduction. यहाँ पे reduction होगा, तो on reduction what happen, this gold chloride is converted into gold, and this formaldehyde is changes into formic acid, that is carboxylic acid, and 6 molecule of HCl is to be given out. So in this way, that is the gold sole. And once again, one more preparation is there, that is formation of rust or ferric hydroxide sole. So ferric hydroxide sole, how it is prepared? It is prepared from ferric chloride जो है, that is FeCl3, right? This ferric chloride react with water to form, क्या form करेगा, ये बना देगा बेटा FeOH thrice. This is a colloidal sole, ये सोल बनता है और ये कहलाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल. क्लियर? सो इन दिस वे, और यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है, देयर इज सिंपली हाइड्रोलिसिस करते, फेरिक क्लोराइड का जब हाइड्रोलिसिस करोगे आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, राइट? सो इन दिस वे द केमिकली वी विल प्रिपेयर सल्फर सोल, गोल्ड सोल एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल. सल्फर सोल के लिए क्या लिया, सल्फर सोल के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और H2S, गोल्ड के लिए गोल्ड क्लोराइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, और फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के लिए क्या लिया, फेरिक क्लोराइड एंड वाटर मॉलिक्यूल. दिस इज यूज्ड टू फॉर्म सोल. नाउ सी, अब यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ colloidal sole by electrical disintegration. This is also said to be Briggs arc method. In which what happen, one it is a metal arc, ये जो है ये metal arc है, and this metal arc is made up either maybe silver or गोल्ड और प्लेटिनम, ये किसी का भी मेटल आर्क होगा. एक जो रिंग होती है उस तरह का रिंग बना दिया, और उस रिंग को हमने अटैच कर दिया 2 इलेक्ट्रोड से, राइट? और उसमें इलेक्ट्रोलाइट दैट इज डिस्पर्सन मीडियम ले लिया. अब क्या हुआ, इस मेटल आर्क को हमको इसके अंदर डिसॉल्व करना है. जब डिसॉल्व हो जाएगा तो मेटल आर्क हमारा डिस्पर्स्ड फेस हुआ सॉलिड, और डिस्पर्सन लिक्विड आपके सामने है, ये सब ये जो पार्ट है सब लिक्विड, राइट?
तो अब इसको हमने, इस कंटेनर को हमने एक दूसरे कंटेनर में प्लेस्ड कर दिया। क्या है, उसके चारों तरफ क्या रखा हुआ है, आइस भरा हुआ है। क्लियर। अब इससे होगा क्या बेटा, जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड से हम कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और पास करते हैं, तो ये जो मेटल आर्क उससे टाई किया हुआ है, जो मेटल आर्क उससे टाई किया हुआ है, वो मेटल आर्क क्या होगा, मेल्ट होगा एंड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट। और वो उस फिर जो ये आपका आइस चारों तरफ कंटेनर में रखा हुआ है, उस आइस से वो जो मेटल मेल्ट हो रहा है वो फिर इजीली क्या होगा, वेपर स्टेट से क्या होगा, फिर लिक्विड स्टेट में आएगा और वो इस डिस्पर्सन मीडियम में मिक्स हो जाता है। मतलब ये हुआ कि हीट करने पे वो चेंज होता है अगर गैसियस फेज में, तो उससे उसको लिक्विड फेज में कन्वर्ट करा के विद द हेल्प ऑफ आइस वो क्या होगा, फिर वो लिक्विड बन जाएगा। तो डिस्पर्स्ड भी लिक्विड और डिस्पर्सन भी लिक्विड, तो दोनों क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे और एक सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर वहीं पे हमने लिया है सिल्वर लिया होगा मेटल आर्क, तो सिल्वर का सोल बन जाएगा। अगर गोल्ड लिया होगा तो गोल्ड का सोल मिल जाएगा। जो भी मेटल आर्क होगा उसका सॉल्यूशन बन जाएगा, वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। दैट इज द ब्रिडिक्स आर्क मेथड, राइट। और इस ब्रिडिक्स आर्क मेथड में गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम सोल आर प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोड डिस्पर्सन, क्योंकि इलेक्ट्रोड ही यूज़ किया जाएगा, बिना इलेक्ट्रिसिटी पास किए ये प्रोसेस नहीं होता है, इसीलिए इसको कहते हैं ब्रिडिक्स आर्क मेथड, राइट। अब इसी में कुछ टर्म्स हैं जो आपको जानना चाहिए। दैट इज़ वन टर्म वेरी इंपॉर्टेंट, पेप्टाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय पेप्टाइजेशन? पेप्टाइजेशन का मतलब होता है सिंपली कि प्रेसिपिटेट इज कन्वर्टेड इनटू कोलॉइडल सोल। प्रेसिपिटेट को कोलॉइडल सोल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन। बाय एडिंग सुटेबल पेप्टाइजिंग एजेंट, मतलब कोई भी पेप्टाइजिंग एजेंट यूज़ करके हम क्या करेंगे, उस प्रेसिपिटेट को कोलॉइडल सोल में कन्वर्ट करते हैं, एंड दैट इज सेड टू बी पेप्टाइजेशन। क्लियर। फिर बेटा इसके बाद फिर नया टॉपिक जो आता है इसमें है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सोल। जो कोलॉइडल सोल है उसका प्यूरिफिकेशन। अब प्यूरिफिकेशन के लिए डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब देखो डायलिसिस क्या होगा, डायलिसिस में बेटा प्यूरिफिकेशन मतलब जो भी इम्प्योरिटी होगी, जो भी अनवांटेड थिंग्स होगी कोलॉइडल पार्टिकल में, उसको रिमूव करता है। अब ये डायलिसिस जो प्रोसेस होगा पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे क्या होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पोर से जो पास होगा, है ना, तो कोलॉइडल सोल को प्यूरिफाई कर देते हैं। अब यही प्रोसेस बहुत स्लो है, तो प्रोसेस को फास्ट करने के लिए क्या किया, प्रोसेस को फास्ट करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, एंड देयरफॉर इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रोडायलिसिस। मीन्स वही डायलिसिस होगा लेकिन प्रोसेस किसके प्रेजेंस में होगा, इलेक्ट्रिसिटी के। फिर आता है वेरी इंपॉर्टेंट जो कि पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है बेटा कि माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे उसको हम क्या करेंगे, उसको हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। कैसे? उसमें क्या होगा, जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लिया, उस ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में को डीप कर दिया, दैट इज 4% नाइट्रोसेलुलोज सॉल्यूशन में, 4% नाइट्रोसेलुलोज सॉल्यूशन इन अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल और ईथर के सॉल्यूशन में इसको क्या किया, डीप कर दिया उस फिल्टर पेपर को। अब वो फिल्टर पेपर क्या करेगा, इसको क्या करेगा, सोक करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब जब करेगा बेटा, तो जो फिल्टर पेपर का वो जो पोर्स है उसमें, ये अपना ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है जो हम लोग लैब में यूज़ करते हैं, उसको हमने 4% नाइट्रोसेलुलोज में और अल्कोहल एंड ईथर में डीप कर दिया। अब थोड़े देर का बाद वो क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा। जब एब्जॉर्ब करेगा तो इसके जो पोर्स होते हैं इस फिल्टर पेपर के, वो क्या होंगे, वो और छोटे होंगे कि और बढ़ेंगे, वो और छोटे होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 4% नाइट्रोसेलुलोज अल्कोहल इन ईथर है, वो क्या करेगा, वो उस पोर्स में क्या होंगे, एड्जॉर्ब होंगे, जमा होंगे उसके सरफेस पे। तो पोर्स का साइज क्या होगा, और छोटा हो जाएगा, जिससे माइन्यूट से माइन्यूट चीज भी फिल्टर आउट हो सकती है।
राइट। और इसी तरह से कोलॉइडल सोल को हम लोग प्यूरिफाई करते, दैट इज दिस टेक्निक इज सेड टू बी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और इसको कहते हैं कोलॉइडियन सोल। क्लियर। 4% नाइट्रोसेलुलोज, क्लियर, 4% नाइट्रोसेलुलोज इन अल्कोहल एंड ईथर, ये जो बनता है इसी में हम फिल्टर पेपर को डीप करते हैं। इज इट क्लियर? अब देखो वही चीज़ यहाँ दिखा है बेटा कि कोलॉइडल पार्टिकल जो हम लोग फिल्टर पेपर बनाते हैं उसकी साइज़ लार्ज होती है फिल्टर पेपर की, उसको इसमें क्या करते हैं 4% नाइट्रोसेलुलोज इन अल्कोहल एंड ईथर में डीप करते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे उसको पार्टिकल सोप करता है, सोप करेगा तो उसका जो साइज़ होगा पोर्स का वो और छोटा हो जाएगा। दैट इज सेड टू बी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर। अब वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो फिल्टर पेपर यूज़ हुआ वो क्या करेगा, वो सबको पास करेगा एक्सेप्ट कोलॉइडल पार्टिकल। इट डू नॉट अलाउ टू पास कोलॉइडल पार्टिकल, दैट इज सेड टू बी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, राइट। फिर उसके बाद अभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, मतलब क्या हुआ, जो भी कोलॉइडल पार्टिकल का साइज़ होगा वो साइज़ अगर बहुत छोटा है तो हम कौन सा पेपर फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर, दिस टेक्निक इज़ यूज्ड। एंड हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, सेम थिंग कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर ले लो, उस फिल्टर पेपर को डीप कर दो 4% नाइट्रो सेलुलोज और अल्कोहल इन ईथर में। उससे क्या होगा, वो फिल्टर पेपर उस 4% नाइट्रोसेलुलोज अल्कोहल इन ईथर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और उसके सरफेस पे एड्जॉर्ब भी होगा, जिससे जो पोर्स होगा उसका साइज़ क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो क्या है, वो जो छोटा साइज़ हो गया तो वो क्या, वो अलाउ करेगा, सब पार्टिकल को पास करा देगा, लेकिन एक्सेप्ट कोलॉइडल पार्टिकल डू नॉट पास दैट फिल्टर पेपर, दैट इज सेड टू बी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब बेटा जब इतना चीज़ आपने पढ़ लिया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्यूरिफिकेशन हो गया, अब आ जाती है प्रॉपर्टी की बात। प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सोल, कोलॉइडल सोल की क्या प्रॉपर्टी है, तो कोलॉइडल सोल की प्रॉपर्टी आप लोगों ने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज टिंडल इफेक्ट। क्या होता है टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट में स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब कोई भी कंटेनर है, उस कंटेनर में आप कोलॉइडल सोल ले लो, तो अगर लाइट हम पास कराएं तो जो भी पार्टिकल से वो लाइट स्ट्राइक करेगी तो लाइट बाद में क्या होगी, स्कैटर होगी। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज सेड टू बी टिंडल इफेक्ट, मतलब उसके अंदर जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल है उस पर लाइट जब पड़ती है तो लाइट स्कैटर होती है, दैट इज सेड टू बी टिंडल इफेक्ट। क्लियर। और ये जो है इट डिपेंड्स ऑन, जो कलर अपने को दिखता है इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड, जो लाइट हमको दिख रही है अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। ठीक। फिर उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक उसी में बेटा, ब्राउनियन मूवमेंट। क्या होता है ब्राउनियन मूवमेंट? ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल है कोलॉइडल पार्टिकल उसका जिगजैग मोशन, जिगजैग मूवमेंट। क्या है जिगजैग मोशन? मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी कोलॉइडल पार्टिकल में, है ना, कोलॉइडल पार्टिकल जो कोलॉइडल सॉल्यूशन में है ना, जब कोई वो पार्टिकल होते, पार्टिकल रैंडमली मूव करते रहते हैं, है ना, अगर उसको स्टर कर दिया तो पार्टिकल क्या होगा, वो मूव करता रहेगा और एक दूसरे स्ट्राइक करके वो जिगजैग पाथ बनाता है, क्योंकि वो हमेशा मोशन में ही रहेगा, मूवमेंट होता रहेगा, दैट इज सेड टू बी ब्राउनियन मूवमेंट। क्लियर। और ये इससे क्या होता है, इससे वो स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सोल करता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल, क्योंकि पार्टिकल एट रैंडम मोशन में मूव करता रहेगा, स्टेबलाइज करता रहेगा। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या हो, जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल है वो डिफाइन कर रहा है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से वो क्या, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी प्रॉपर्टी आप सॉल्यूशन में पढ़ चुके हो। वही यहाँ पे कोलॉइडल सोल है, तो कोलॉइडल सोल में भी तो बेटा डिस्पर्स्ड एंड डिस्पर्सन है। तो डिस्पर्स्ड क्या है, डिस्पर्स स्मॉल है, तो वो क्या हुआ, इट बिहेव एज ए सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए क्या कह रहा है ये, मतलब कि जो आपका कोलॉइडल सोल का प्रॉपर्टी है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगी। क्या, यही सब, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर आ जाता है कलर, वो तो बात कर लिया आपसे, कलर वाइज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो वेवलेंथ होगा वही वेवलेंथ का कलर हमको ऑब्जर्व होगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल।
चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल का मतलब क्या है, इसमें कोलॉइडल पार्टिकल जो होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। पॉजिटिव कोलॉइडल सोल क्या होंगे, जैसे एलुमिना Al2O3 एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये पॉजिटिव कोलॉइडल सोल है। और रस्ट Fe2O3 एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये पॉजिटिव है, राइट। दैट इज सेड टू बी पॉजिटिव कोलॉइडल सोल चार्ज। जो अपना ब्लड है वो भी। और नेगेटिव में सारे मेटल, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है, ये नेगेटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन है। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव किस पे होगा, एल्यूमिना, रस्ट और ब्लड। नेगेटिव कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, जो चार्ज हम बात कर रहे हैं बेटा, ये चार्ज क्या क्या है, द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज ड्यू टू, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन उसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड होती है, किससे होती है, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द सेम चार्ज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल विच प्रिवेंट देम फ्रॉम कोएगुलेशन। मतलब जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है उसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड है, जो सेम चार्ज है। क्यों, क्योंकि सेम चार्ज में क्या होगा, रिपल्शन। जब सेम चार्ज में रिपल्शन होगा बेटा तो उसमें क्या है, जैसे ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, इसमें रिपल्शन होगा। वो रिपल्शन क्या करेगा, वो रिपल्शन एक दूसरे को मिलने नहीं देगा, मिक्स होने नहीं देगा। जब मिक्स होने नहीं देगा तो प्रेसिपिटेट नहीं होगा, कोएगुलेट नहीं होगा। तो कोएगुलेट नहीं होगा मतलब क्या हुआ, वो एज इट इज कोलॉइडल सोल ही रहेगा। मतलब बहुत अच्छी पॉइंट याद करिए इसको, कहता है द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सोल, स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सोल किस पे डिपेंड है, सेम चार्ज पे। क्यों, क्योंकि सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्शन। सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्शन। तो इसीलिए वहाँ पे जब रिपल्शन होगा बेटा तो वो रिपल्शन सेम चार्ज, चाहे वो नेगेटिव या नेगेटिव हो, पॉजिटिव, उसमें रिपल्शन होगा जिससे उसकी स्टेबिलिटी एज इट इज़ रहेगी। वो प्रेसिपिटेट बनाने नहीं देता। जो प्रेसिपिटेट नहीं बनाने देता क्या होगा, वो एज इट इज़ कोलॉइडल सोल ही रहेगा। तो ये होता है चार्ज ऑन कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्लियर। अब यहीं पे चार्ज ऑन कोलॉइडल सॉल्यूशन में आपको देखो दिया हुआ है कि हम कहते हैं डबल लेयर। अगर हमने कहा कि ये एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। हमने कहा कि ये सॉल्यूशन है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का एक सॉल्यूशन है AgI, ठीक। इसको हमने क्या कहा कि ये, अगर हमने कहा कि इसको हम डीप कर रहे हैं एक्सेस ऑफ, इसको रिएक्ट कराते हैं एक्सेस ऑफ KI के साथ, ये एक्सेस में है। तो बेटा सीधी सी बात है कि ये जो AgI होगा, है ना, इसके चारों तरफ बगल में कौन सा आयन होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन। इसके चारों तरफ नेगेटिव आयन का एक लेयर बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो है, ये सिल्वर आयोडाइड में एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड में ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो I है वो यहाँ पे डिपॉजिट होगा और उसके I के बगल में कौन सा चार्ज आएगा, K+ आ जाएगा। तो दैट इज सेड टू बी चार्ज ऑन कोलॉइडल सोल। अब इसी को अगर मैं कह दूँ कि यहाँ पे अगर वही सिल्वर आयोडाइड हो, है ना, उसी सिल्वर आयोडाइड में मैं ये कह रहा हूँ बेटा, देखो ध्यान से देखो, सिल्वर आयोडाइड में पहले मैंने क्या कहा, पहले मैंने कहा कि एक्सेस ऑफ KI। मैं अभी फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पूरा समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा AgI, है ना, AgI को मैंने KI से रिएक्ट कराया। अब KI क्या है, KI इज इन एक्सेस। जब ये एक्सेस में होगा तो ये आपका AgI तो कोलॉइडल सोल है ही है, इसके बगल में कौन सा आयन आएगा, सारे नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये एक्सेस पे है। अब यहीं पे सेम वही AgI हो और हमने एक्सेस में ले लिया AgNO3। तो जब एक्सेस में AgNO3 होगा तो हमें जो भी कोलॉइडल सोल मिलेगा ये AgI है, इसके बगल में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव आयन। तो इस तरह से यहाँ पे नेगेटिव आयन डेवलप होता है, एक्वायर करता है। क्यों, क्योंकि एक्सेस में KI है और यहाँ पे ये नेगेटिव एक्वायर कर रहा है क्योंकि ये में एक्सेस में I है। यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्वायर करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस में सिल्वर नाइट्रेट है। तो इस तरह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है, राइट। और यही कहलाता है डबल लेयर। और डबल लेयर क्या करेगा, वो उसको स्टेबलाइज करता रहेगा। क्लियर। इस तरह से ये कोलॉइडल सोल जो एक्सेस में होगा उसके चार्ज बनते जाते हैं और इसी को कहते हैं बेटा हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब क्या है ये फिर से सुन लो, व्हेन द कोलॉइडल पार्टिकल अक्वायर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बाय सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन वन ऑफ द आयन इट अट्रैक्ट काउंटर आयन फ्रॉम द मीडियम।
देखो ये सिल्वर आयोडाइड था, तो इसमें सिल्वर प्लस है, आई माइनस है। अब जब कोलॉइडल पार्टिकल जो सराउंडिंग में उससे क्या एक्वायर कर रहा है, उससे आयोडाइड आयन एक्वायर कर रहा है, तो क्या बनेगा, नेगेटिव। और ऐसे ही सिल्वर आयोडाइड है, यहाँ पे सराउंडिंग में क्या होगा, सराउंडिंग में Ag प्लस है, तो Ag प्लस को अक्वायर कर रहा है, तो वो पॉजिटिव, जिससे वो स्टेबिलिटी मेंटेन किए रहता है। अब इसी को हमने बताया है सिल्वर आयोडाइड बिकम नेगेटिव। कब नेगेटिव होगा, जब वो आयोडाइड को अक्वायर करेगा। और वही सिल्वर आयोडाइड पॉजिटिव होगा कब, जब वो अक्वायर करेगा सिल्वर आयन को। इसी को कहते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू लेयर of opposite charge around the colloidal particle is known as electrical double layer, that is Helmholtz electrical double layer। क्लियर। इस तरह से ये काफी अच्छी पॉइंट्स है बेटा, इसको आपको याद होना चाहिए। ये बेटा देखो यहाँ पे डबल लेयर डिफाइन किया है। सेम देखो सिल्वर आयोडाइड था, उसमें सिल्वर डिपॉजिट मतलब पॉजिटिव, फिर उसके अगले कौन एक्वायर किया, नेगेटिव। और यहाँ पे देखिए ये सिल्वर आयोडाइड है, उसके बगल में आई, फिर उसके बगल में Ag, मतलब ये डबल लेयर एक्वायर करता रहेगा, मतलब स्टेबलाइज करता है। जैसे ये आपने AgI लिया, इसके बगल में आएगा I माइनस अगर आ गया तो अगला लेयर Ag प्लस होगा। और अगर यहीं पे AgI है, अगला लेयर आपने अगर Ag प्लस लिया तो उसके बाद का लेयर जो होगा वो I माइनस। तो इस तरह से ये लेयर बनता जाता है और स्टेबलाइज होता है। दिस इज सेड टू बी हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, राइट। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अब इसके बाद देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज जेटा पोटेंशियल। जेटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जेटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक। इलेक्ट्रोकाइनेटिक का मतलब क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकाइनेटिक। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, है ना। मतलब इलेक्ट्रोड जब यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं तो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक, एंड दैट इज सेड टू बी जेटा पोटेंशियल। अब जेटा पोटेंशियल क्या हुआ, जब किसी भी कोलॉइडल सोल में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वहाँ पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनता है। पॉजिटिव जो होता है वो स्टेशनरी फेज कहलाता है, और नेगेटिव जो होगा वो मोबाइल फेज। तो जो नेगेटिव है वो मोबाइल और पॉजिटिव स्टेशनरी। तो कहता है द डिफरेंस बिटवीन द मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज और फिक्स एंड डिफ्यूज्ड लेयर। तो जो स्टेशनरी है वो फिक्स होगा, जो मोबाइल है वो डिफ्यूज्ड हुआ, तो इन्हीं के बीच के डिफरेंस को क्या कहता है, जेटा पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्या, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज, और the potential difference between the fixed layer and the diffused layer is known as क्या, that is said to be electrokinetic potential और zeta potential। फिर यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है, देखो इस कंटेनर में ये एक इलेक्ट्रोड, ये दूसरा इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड में बेटा, और ये है कोलॉइडल सोल। अब इस कोलॉइडल सोल में क्या होगा, एक होगा पॉजिटिव आयन, एक होगा नेगेटिव। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन जनरेट होगा। तो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन कहाँ मूव करेंगे, ये मूव करेंगे अपोजिट इलेक्ट्रोड पे। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव के पास जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव के पास जाएगा। इस तरह से बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी सेपरेशन ऑफ अपोजिट आयन टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर से सुनो, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्ज टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड। मतलब ये जो कोलॉइडल सोल है, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इसके जो चार्ज होंगे, जो आयंस होंगे, वो क्या होंगे, अपोजिट इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होते हैं, सेपरेट होते हैं। इसी सेपरेशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर आता है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन सिंपली हम जानते हैं कि जमना, कोएगुलेट होना। मतलब यहाँ पे कोलॉइडल सोल इज कन्वर्टेड इनटू प्रेसिपिटेट।
कोलॉइडल सोल से प्रेसिपिटेट बनाने को हम क्या कहते हैं? दैट इज सेड टू बी कोएगुलेशन। जैसे ब्लड है, ब्लड कहीं बेटा अगर चोट लग जाती है तो हम क्या होता है? ब्लड जमना, दैट इज क्लॉटिंग, दैट इज सेड टू बी कोएगुलेशन, ब्लड का जमना। फिर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हार्डी-स्कूल्स रूल। क्या कहता है हार्डी-स्कूल्स रूल? हार्डी-स्कूल्स रूल कहता है कि ग्रेटर द चार्ज ऑन आयन, मतलब किसी भी आयन पे, किसी भी एटम एलिमेंट पे अगर चार्ज जितना ज़्यादा होगा वह उतना ज़्यादा प्रेसिपिटेट बनाएगा। ग्रेटर द चार्ज ऑन आयन ग्रेटर विल बी द प्रेसिपिटेशन, मतलब कोएगुलेशन। मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा, फॉर एग्जांपल अगर Al3+ है ना, और Mg2+ है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा? Al3+। और यहीं पे अगर मैं कहूँ कि अगर यहाँ पे मैं ले लूँ फॉस्फेट, जैसे PO4 3- और यहाँ पे सल्फेट 2-, अब इसमें कौन प्रेसिपिटेट बनाएगा? यही फॉस्फेट। ये आयन मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव से मतलब नहीं, चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना जल्दी प्रेसिपिटेट बनाएगा। ग्रेटर द चार्ज ऑन आयन ग्रेटर विल बी द प्रेसिपिटेशन। चाहे वो कोई भी हो, वो सिर्फ चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, उसके ऊपर आयन्स ज़्यादा होने चाहिए। क्लियर? ये भी बहुत बार पूछा पेपर में, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा कैसे बनता है? अब जो रिवर है बेटा, रिवर वाटर में भी क्या होगा? कंटेनिंग आयंस होंगे, इलेक्ट्रोलाइट होंगे, चार्ज पार्टिकल्स होंगे। और सी वाटर में भी सेम, कंटेनिंग आयंस होंगे, इलेक्ट्रोलाइट होंगे और चार्ज पार्टिकल होंगे। जब ये रिवर वाटर सी वाटर से कोलॉइड करता है, रिवर वाटर एंड सी वाटर बोथ कोलॉइड विथ ईच अदर, जब कोलॉइड होंगे तो इसके जो रिवर वाटर और सी वाटर के अपोजिट आयंस है, चार्ज जो अपोजिट है, वो क्या होंगे? वो कोलॉइड होके मिलते हैं, मिक्स होते हैं। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, दैट इज कोएगुलेट, दे कोएगुलेट। अब वो अपोजिट चार्ज है तो कोएगुलेट होगा, कोएगुलेट होगा तो उससे क्या होगा? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, और वही क्या कहलाता है? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। मतलब कभी भी जो रिवर वाटर है उसमें भी चार्ज पार्टिकल है, अपोजिट आयंस है, इलेक्ट्रोलाइट है। रिवर वाटर में भी और सी वाटर में, दोनों में सेम चीज़ें हैं। तो जब दोनों कोलॉइड होते हैं, एक दूसरे से मिक्स होते हैं, तो मिक्स होंगे क्या होगा? अपोजिट आयंस आर कंबाइंड टुगेदर। जब अपोजिट आयन मिलते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है? प्रेसिपिटेट। और उसी क्या कहते हैं? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, और वही डेल्टा फॉर्मेशन कहलाता है। राइट? क्लियर? तो ये क्या हो गया बेटा? डेल्टा का फॉर्मेशन। फिर उसके बाद आ जाता है जो एप्लीकेशन पार्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।